ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰੋਚ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਰ ਅਵੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਸਮਝਾਏ ਸੀ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸੀਗੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਨੀ ਹੀ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦਾ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਸਿਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੋਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਸਟ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੋਲ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਟਰੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਈਸਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਉਹ ਵੈਸਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨੇ। ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਨ ਹੈ, ਮੂਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਉਹ ਨਾਰਥ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਫਾਰ ਅਵੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸੀਗੀਆਂ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਸਟਾਰ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਨ, ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਰਥ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸਟੈਂਟ ਆਪਰੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਂਗਲ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਗਲ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਕਸਟੈਂਟ ਆਪਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
बट एंगल किवें मेजर होगा, तुसीं मैथमैटिक्स दे विच भी देखिया होवे, अगर किते एंगल असी चैप्टर ਨੂੰ स्टार्ट करते हैं उत्थे पहला असी एक नीचे लाइन लगाने आ, बेस लाइन जिन्हों कहते हैं, इस पॉइंट ते असी अपना डी रखते हैं जिन्हों कह रहे हैं डी। तो सपोज 30 डिग्री एंगल प्लॉट करना है तो इस पॉइंट ते 0 आएगा, ये थोड़ी बेस लाइन होएगी, तो जिथे डी का 30 डिग्री है उस पॉइंट ते तुसी मार्क लगा लोगे तो इस पॉइंट को जोड़ दोगे, आ जिहड़ा एंगल बन जाएगा ये की हो जाएगा 30 डिग्री। हुण तुसी इत्थे एक चीज़ नोटिस करो, ये एंगल 30 डिग्री है, ये किवें पता लग गया, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इस लाइन ਦੇ विद रिस्पैक्ट टू इस लाइन ਨੂੰ देखिया। जिवें अगर ਅਸੀਂ नोटबुक की गल करिए, मैं कह रही हाँ इनू 45 डिग्री एंगल के उपर ओपन करना है, तो 45 डिग्री किवें इस तरह देखांगे, तब किवें पता लग गया कि जिहड़ा आ वाला पोर्शन है ये एंगल 45 है, बट उहदे लई सानू की चाहिदा है, एक बेस लाइन चाहिए है, बेस लाइन या जिसनू असी रेफरेंस लाइन कहते हैं, जिस दे विद रिस्पैक्ट टू असी बाकी एंगल नू मैजर करना है। अगर ये रेफरेंस लाइन साडे कोल नहीं है तो असी किस तरह मैजर करांगे कि एंगल कित्थों तो कित्थों है, मतलब एंगल दी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है अगर साडे कोल बेस लाइन नहीं हैगी। हुण क्वेश्चन ये है रेफरेंस लाइन नहीं है रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन चाहिए है, तो रेफरेंस लाइन आएगी कित्थों, क्वेश्चन है, क्योंकि रेफरेंस लाइन चाहिए है एंगल नू मैजर करन दे लई। एंगल किवें मैजर करना है वो सानू पता है कि असी सेक्सटेंट ऑपरेटर्स नू यूज़ करके एंगल मैजर करना है, तो एंगल तो मैजर हो जाएगा, बट उहदे लई जिहड़ी रेफरेंस लाइन है वो कित्थों आएगी, वो रेफरेंस लाइन आएगी, उहदे लई सानू एक अजम्पशन करनी पएगी कि सपोज करो ये तो वो स्टार है जिसकी डिस्टेंस असी अर्थ सरफेस तो कैलकुलेट करनी है, बट असी एक होर स्टार अज्यूम करांगे जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा फार अवे है फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। तो अगर तुहानू याद होए लास्ट लैक्चर दे विच मैं तुहानू दस्सिया सी जदों बेसिक्स कराए सीगे पैरालैक्स मैथड दे कि जिन्ना कोई ऑब्जैक्ट साडी अर्थ तो दूर होएगा उहदियां जिहड़ियां रेज आ रही ने असी अज्यूम करांगे कि वो रेज ने जिहड़ियां उन्हां दा एंगल जिहड़ा बन रहा है वो 0 डिग्री है, मीनस वो पैरलल रेज ने। ਉਹਦਾ रीज़न भी मैं तुहानू दस्सिया सी कि जिवें जिवें असी ट्रैवल करते मतलब डिस्टेंस टू इनक्रीज़ करते जावांगे तो जिहड़ा एंगल है सबटेंडेड बाय दी आर्क वो उन्ना छोटा हुंदा जाएगा। जिवें सपोज पहला 1 डिग्री फिर 1 मिनट 1 सेकेंड, जिन्ना ज़्यादा असी डिस्टेंस मीनस इनक्रीज़ करते जावांगे जिहड़ा एंगल है वो उन्ना ज़्यादा छोटा हुंदा जांदा है। अल्टीमेटली असी कितनी फार अवे अज्यूम कर रहे हैं, इन्नी ज़्यादा फार अवे है वो स्टार कि जिहड़ा उहदा एंगल है वो 0 डिग्री है। तो जे कोई भी रेज जिहड़ियां 0 डिग्री एंगल बनांदियां ने उन्हां नूं असी की कहने आ, दो लाइनस नूं पैरलल रेज। क्लीयर। सो इत्थे असी की अज्यूम करांगे कि अर्थ सरफेस तो वो जिहड़ा स्टार है बहुत ज़्यादा फार अवे है, तो उहदियां जिहड़ियां रेज आ रही ने ऑलमोस्ट की होणगियां पैरलल रेज होणगियां लाइक दिस। और इत्थे भी आ रही होएगी और इत्थे भी आ रही होएगी ते और इधर भी आ रही होएगी। ये ओ रेज ने जिहड़ियां वेरी फार अवे स्टार तो आ रही ने। सो मैं इत्थे थोड़ा जा हिंट देने दे लई मैंशन कर रही हाँ, रेज फ्रॉम फार अवे स्टार। ये चीज़ां बड़े ध्यान नाल नोटिस करनियां ने कि ये जिहड़ियां रेज ने ये किसी फार अवे स्टार तो आ रही ने, बट असी जिहड़ी डिस्टेंस मैजर करनी है वो इस स्टार की करनी है फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ। हुण की आ गया साडे कोल, एक रेफरेंस लाइन आ गई जिहदी सानू जरूरत सी। इन्हां रेस नूं असी की लवांगे साडी रेफरेंस लाइन। इत्थे ऑपरेटर्स रखांगे टेलीस्कोप ते सेक्सटेंट ऑपरेटर्स जिस दे नाल असी एंगल नूं मैजर करना है। जदों दोनों नूं इत्थे कोइंसाइड कराया ए रेज नूं देखिया तो एंगल कितना बन रहा सी उन्हां दे विच 0 डिग्री। क्लीयर। हुण असी की करांगे असी उस टेलीस्कोप नूं मूव करना शुरू करांगे। कितना मूव करांगे कि इस पॉइंट ते सानू ए स्टार नज़र आन लग जाए। क्लीयर।
ਸੈਕਸਟੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 0 ਡਿਗਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਮੈਜਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਟਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ θ1। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸਟੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਕਿ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਆਹ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਐਂਗਲ θ1 ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, θ1। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 365 ਡੇਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ 365 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਟ ਕਰੋ ਫॉर 6 ਮੰਥ। ਕੋਈ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈंने 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 365 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 365 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪੂਰਾ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਅਰਥ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਓ ਵੇਟ ਫॉर 6 ਮੰਥ। 6 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਰਥ 1 ਈਅਰ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਫ ਪਾर्ट हो गया, हाफ रोटेशन हो गई उसकी। हुण की करना है, उस जदों अर्थ इस पोजीशन दे ऊपर है उस टाइम ते की होएगा, जेड़ा बहुत वेरी फार अवे स्टार सी उत्थों जेड़ियां रेज आ रही सी ओदी डायरेक्शन चेंज नहीं होएगी। हुण इत्थे आंसर है क्यों नहीं चेंज होएगी, वो मैं अपने पिछले लैक्चर दे विच तुहानूं दस चुकी हाँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिन्ना ज़्यादा डिस्टेंस ते होएगा उन्नियां ओदी जिहड़ी डायरेक्शन है चेंज होने की प्रोबेबिलिटी उन्नी घट जाएगी ते उस तो आने वाली जिहड़ियां रेज ने उन्हां दे विच एंगल कितना बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। और इस केस दे विच असीं मान रहे हां कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट असीं स्टार फार अवे लिता है उदों जिहड़ियां रेज आ रही ने वो ऑलमोस्ट एंगल कितना है 0 डिग्री का। सो इस पॉइंट ते भी रेज जिहड़ियां ने रेफरेंस लाइन 0 डिग्री ते ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗੇਨ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੇ ਆਪਰੇਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸਟੈਂਟ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਮੈਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ B ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 0 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ करना शुरू करो। कदों तक रोटेट करना है, जदों तक कि तुहानूं ये स्टार है जिहड़ा नज़र नहीं आने लग जाता।
हुण इस स्टार की भी पोजीशन जिहड़ी डायरैक्शन है वो चेंज नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि ये भी साडे अर्थ तो फार अवे है। सो जो असी अज्यूम करके चल रहे हैं कि 6 मंथ पहला जिस पोजीशन ते सी उसे पोजीशन ते ये हुण भी है। सो इस पॉइंट तो असी ए स्टार नू दोबारा ऑब्जर्व करांगे ते एंगल मेजर करांगे। लेट अस सपोज दिस एंगल इज θ2। अगेन इत्थे ज्योमेट्री का सेम कॉन्सैप्ट यूज करांगे कि अगर दो पैरेलल रेज ने उन्होंने एक लाइन कट करके जा रही है तो जेडे एंगल बन रहे हैं अल्टरनेट वो इक्वल होंगे। सो जेड़ा आ एंगल है एक ही होएगा θ2। लेट दिस पॉइंट बी P। सो जेड़ा APB एंगल है कंबाइन वो कितना बन जाएगा θ1 प्लस θ2। सो जेड़ा आ एंगल है साडे कोल APB वो किस दे इक्वल आ जाएगा θ1 प्लस θ2। हुण ए की है रिवॉल्व हो रही है, चल रही है, रोटेशन हो रही है, सन दे अराउंड अर्थ मूव कर रही है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ जिहड़ी डिस्टेंस है मैं उसनू मान के चल रही हाँ कि वह आर है। वैसे भी तुहानू ये डिस्टेंस पता है कितनी हुंदी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर तुसी पिछले लेक्चर्स देखे ने तो मैं जो प्रैक्टिकल यूनिट्स करवाई सी लेंथ दे उत्थे असी 3 यूनिट्स नू डिस्कस किया सी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक। तो उत्थे मैं जो फर्स्ट यूनिट डिस्कस किया सीगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उदों दसिया सी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की हुंदा है, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर? तो वो डिस्टेंस हुंदी कितनी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आ जी डिस्टेंस है इसनू असी मान रहे हाँ लेट अस सपोज स्मॉल आर। तो अगेन जो इत्थों तो इत्थे तक डिस्टेंस मेजर करांगे वो की होएगी अगेन स्मॉल आर होएगी। तो अर्थ ने कितनी टोटल डिस्टेंस हो गई अगर असी इस ट्राइंगल की गल करिए APB की, तो AB जी लाइन है वो किस दे इक्वल आ गई, AB जी लाइन है वो किस दे इक्वल आ गई 2R। क्लियर? हुण आज जो असी मेजर करना है लेट अस सपोज इट इज X। X की है AP की है डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस तो वो जिहड़ा स्टार है वो कितना दूर है। क्लियर? हुण असी कैलकुलेट की करना चाहते हैं, असी कैलकुलेट करना है दिस X मीनस डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ट्रिग्नोमेट्री का असी रिलेशन यूज करांगे। तुहानू ये भी पता है कि जदों भी सानू 3 क्वांटिटीज़ है साडे कोल, अगर उसदे विचों 2 सानू नोन ने तो तीसरी क्वांटिटी असी अल्टीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण देखो साडे कोल 3 क्वांटिटीज़ ने, 3 दे विचों पहली क्वांटिटी की है एंगल है APB की सानू ये एंगल पता है। यस किस तरह जदों असी सेक्सटेंट ऑपरेटर्स दे नाल इस एंगल नू मेजर करांगे तो साडे कोल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कुछ कि यह 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, 25 है, कितना डिग्री है। ठीक है ना? तो उस वैल्यू नू असी यूज करांगे। दैट मीनस कि सानू θ1 एंड सिमिलरली θ2 की वैल्यू नोन है कि कितनी वैल्यू है, मतलब ए क्वांटिटी सानू नोन है। AB कितना है 2R। 2R मीनस फ्रॉम हियर टू हियर। ए की है डिस्टेंस, ये सानू एक क्वांटिटी भी नोन है। किस तरह? मैं तुहानू हुणी दस के चुकी हाँ कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू कितनी हुंदी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो उन्होंने असी डबल करता मीनस 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उहदी भी वैल्यू सानू मीटर दे विच नोन है। क्लियर? तो बच्चा की है क्वांटिटी साडे कोल AP इज इक्वल टू X। तो साने हुण करना की है रिलेशन यूज करना है कि AP नू असी कैलकुलेट किवें करिए। 3 क्वांटिटीज़ ने साडे कोल, 3 दे विचों पहलियां 2 क्वांटिटीज़ सानू पता ने ते तीसरी असी कैलकुलेट करनी है। तो हुण असी यूज करांगे रिलेशन इनू कैलकुलेट करन दे लई। थोड़ा रिवाइंड करो अपना लास्ट लेक्चर, उहदे विच मैं तुहानू रिलेशन लिखवाया सी कि किस तरह से इन्हां क्वांटिटीज़ नू मेजर कर सकते हैं। आर क्या
क्योंकि ये फार अवे है, इस आर्क नू असी यूज़ करांगे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान के चलांगे। तो जो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन इसनू अज्यूम करांगे तो की होएगा, जिहड़ा एंगल है साडा वो कितना बन रहा है, θ1 प्लस θ2, θ2। तो ऑलमोस्ट ये साडी आर्क है, आर रेडियस है, तो ये एंगल है। सो फॉर्मूला असी किदां यूज़ करांगे, θ1 प्लस θ2। इसनू एक बारी दोबारा देखते हैं की किता है असी हुण तक, कि अर्थ नू पहला किसी भी पोजीशन दे उपर अज्यूम कर लिया, एनी डे, किसी भी दिन, साल दे विचों किसी भी दिन तुसी अर्थ की किसी भी पोजीशन दे उपर है अर्थ, सानू नहीं पता किहड़ी पोजीशन दे उपर है, ते उस पोजीशन तो तुसी किसी भी एक स्टार दी जिहड़ी जिसनू जिस दी डिस्टेंस तुसी मैजर करना चाहते हो उसनू ऑब्जर्व किया एनी डे। ठीक, उसनू जो ऑब्जर्व किया तो सब तो पहला साडे कोल जिहड़ी रैफरेंस लाइन है वो किसी फार अवे ऑब्जेक्ट की असी अज्यूम करके चल रहे हैं कि किसी भी फार अवे ऑब्जेक्ट तो जिहड़ियां रेज आ रही ने उसनू असी रैफरेंस लाइन अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो उस तो एंगल नू मैजर कर लिया, उस एंगल नू नोट डाउन कर लिया। नाउ वेट फॉर 6 मंथ। क्यों? क्योंकि 6 मंथ बाद जिहड़ी पोजीशन ते अर्थ है एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन दे विच अर्थ चली जाएगी। ठीक है ना। सो असी बी पॉइंट ते पहुंच गए आफ्टर 6 मंथ। हुण असी अज्यूम दोबारा उसी चीज़ नू रिपीट किया कि जिहड़ी अर्थ है उस पॉइंट ते उस स्टार नू दोबारा ऑब्जर्व करिए। तो जदों असी उस स्टार नू ऑब्जर्व करांगे तो क्योंकि वह बहुत फार अवे है इसलिए उसकी जिहड़ी डायरेक्शन है पोजीशन है वो चेंज नहीं होएगी, असी अज्यूम करके चलते हैं। सो दोबारा जो ऑब्जर्व किया दैन एंगल नू मैजर किया, एंगल नू मैजर करन तो बाद असी दोनों नू टोटल कर लिया। हुण इत्थे असी सिंपल ट्रिग्नोमैट्री का रूल लगाया है कि है रेडियस अपॉन आर्क इज इक्वल टू थीटा। थीटा किस दे इक्वल हुंदा है, आर्क अपॉन रेडियस। सो इथों सानू कैलकुलेट की करना है x इज इक्वल टू 2 आर्क इंटू θ1 प्लस θ2। x की है साडी जो डिस्टेंस असी कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो ये थोड़े कोल एक फॉर्मूला बन गया जिदे विच θ1 प्लस θ2 की है, दिस इज पैरालिटिक एंगल। ये थोड़े कोल पैरालिटिक एंगल बन गया। जो मैं समझाया सी एक ही है बेसिस है एंड दिस इज योर पैरालिटिक एंगल। ते ये साडियां दो डायरेक्शन हो गया जिदे तो असी एक ऑब्जेक्ट नू ऑब्जर्व किया है। सो ये फॉर्मूला तुसी याद रखना है। 2r भी तुहानू कोल नोन है, x तुसी कैलकुलेट कर ली। सो ये आ जाएगा तुहाडे कोल पैरालिटिक एंगल। और जो अज असी ये मैथड डिस्कस किया है इसनू कहंदे ने पैरालैक्स मैथड। आई थिंक हुण तुहानू क्लीयर हो गया है कि वट इज़ पैरालैक्स ते वट इज़ पैरालिटिक एंगल एंड वट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पैरालिटिक एंगल, या जो भी तुसी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है उहदे लई तुसी यूज़ किवें करना है। इहदे विचों 2 क्वांटिटीज़ तुहानू नोन होणगियां ते तीसरी तुसी कैलकुलेट करनी होएगी। मैं इस मैथड नू बहुत डिटेल दे विच समझाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उहदे लई तुहानू बेसिस क्लीयर होने चाहिए ने जो कि असी लास्ट लैक्चर दे विच कीते सी। विदाउट अगर तुसी उस एग्जाम्पल जो मैं डिस्कस कीतियां सी अगर उसको पढ़े बिना इस मैथड नू स्टडी करोगे तो वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुहानू पता होना चाहिए है कि ये रैफरेंस लाइन कित्थों आई। दूजी गल, इस एंगल नू असी जदों ऑब्जर्व किया तो असी जिहड़ा मन के चल रहे हैं इनू स्ट्रेट लाइन क्यों मन के चल रहे हैं। जदों असी इस पोजीशन तो इस पोजीशन ते जाने तो डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज हो रही। तो इन्हां सारियां गल्लां दा आंसर जिहड़ा है वो लास्ट लैक्चर दे विच सीगा जिथे मैं इस दे बेस नू क्लीयर किया सी। ठीक है, अज असी सिर्फ उन्हां जिहड़ियां साडे कोल सॉल्यूशंस आए सी, मतलब कंक्लूजन असी कड्डियां सीगियां, उन्हां नू यूज़ करके इस एंगल नू डराइव किया है। पैरालिटिक एंगल दस्या ते उस तो बाद यह डिस्टेंस किवें कैलकुलेट करनी है उसनू असी स्टडी किया है। सो इंपॉर्टेंट ये है कि तुसी पहला पिछला लैक्चर सुन के
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਪੈਰਾਲੈਟਿਕ ਐਂਗਲ। ਅਦਰਵਾइज ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ लगाया मैथमेटिक्स का और साढ़े को एंगल आ गया, बट बेस थोड़ा क्लीयर होना चाहिए कि असी इसनों कैलकुलेट किवें कीता, किहड़ियां-किहड़ियां असी असम्पशनस नूं यूज़ कीता, क्योंकि जदों तुसीं न्यूमैरिकल सॉल्व करने ने उस टाइम ते इन्हां चीज़ां दी क्लैरिटी होनी जरूरी है। अदरवाइज MCQ नूं सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होंदा है। क्लीयर? सो ये सीगा इंटरैक्ट मैथड टू कैलकुलेट दी लार्ज डिस्टेंसेस। बट दूसरी साइड अगर असी देखिए, अगर ਜਿਹੜੀਆਂ डिस्टेंस ने बहुत ज़्यादा स्मॉल होवे लेंथ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ इनडायरैक्ट मैथड ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ कैलकुलेट करांगे। सो ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ज़्यादा फार अवे डिस्टेंस ਨੂੰ मैजर करना होए ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ यूज़ कर रहे हैं पैरालैक्स मैथड। वट अबाउट अगर ਅਸੀਂ बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ ਨੂੰ मैजर करना होए, स्मॉल कितना, जिवें साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, अगर असी उसनों मैजर करना है तो उहदे लई की मैथड असी यूज़ करांगे। देखो इन्ने स्मॉल चीज़ नूं देखण लई नेकड आई नाल तां ओबवियस असी देख ही नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जदों कोई भी ऑब्जेक्ट है साडे अराउंड, उसनूं असी उदों ही देख सकते हैं जदों कि जिहड़ी लाइट विजिबल लाइट उहदे उपर फॉल कर रही है वह रिफ्लैक्ट होकर साडी आइज़ दे विच वापस आए। तो जदों रिफ्लैक्ट होकर लाइट वापस आती है उदों ਅਸੀਂ उस चीज़ ਨੂੰ देख सकते हैं। बट ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसका साइज़ इन्ना ज़्यादा छोटा है कि अगर लाइट जिहड़ी है उसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो रिफ्लैक्ट होकर वापस नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसनूं बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे नाल असीं समझ सकते हैं कि जदों जिहड़ी अबस्ट्रैक्शन है उहदा साइज़ बहुत छोटा होवे तो लाइट रिफ्लैक्ट होकर वापस नहीं आती, उहदे उपर दी जंप कर जाती है। किवें देख सकते हैं? सपोज करो इत्थे एक वॉल है, ठीक है, असी कोई भी पर्सन है वो बहुत फास्ट मूव करदा 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 इत्थे पहुँच रहा है। अगर इस वॉल की हाइट बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन दौड़दा होया आ रहा है तो इस वॉल तक पहुँच रहा है कि यह इसनूं क्रॉस कर देगा, जंप कर देगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि अबस्ट्रैक्शन, इत्थे अबस्ट्रैक्शन की है, वॉल है, तो अबस्ट्रैक्शन है जिहड़ी उहदा साइज़ बहुत बड़ा है। तो की होएगा, जिहड़ा ये पर्सन है इस वॉल दे नाल स्ट्राइक करेगा तो वापस आ जाएगा, मीनस रिफ्लैक्ट हो जाएगा। बट इस वॉल की जगह अगर इत्थे मैं एक स्टोन रखता, इत्थे मैं की रखता, स्टोन, हुणे पर्सन दौड़दा होया आएगा तो की होएगा, इस स्टोन को लाके इस दे उपर दी जंप कर जाएगा। वेरी ऑब्वियस, क्योंकि ये बहुत छोटा है स्टोन। जदों असी अबस्ट्रैक्शन का साइज़ है जिहड़ा वो बहुत छोटा होएगा तो की होएगा, यह इस दे उपर दी जंप कर जाएगा। बट अगर अबस्ट्रैक्शन का साइज़ बहुत बड़ा है तो जंप नहीं कर पाएगा, रिफ्लैक्ट बैक हो जाएगा। यही चीज़, यही फिनोमिना नूं असी यूज़ करते हैं अपनी फिजिक्स के अंदर। की है, जदों जिहड़ी विजिबल लाइट है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो साडे सराउंडिंग दे विच है उन्होंने असीं किवें देख सकते हैं, जिहड़ी विजिबल लाइट फॉल कर रही है जदों किसी ऑब्जेक्ट के उपर स्ट्राइक करती है वो तो रिफ्लैक्ट होकर साडी आइज़ दे विच आती है। जिहड़े ऑब्जेक्ट तो लाइट रिफ्लैक्ट होकर साडी आइज़ तक आ रही है उस ऑब्जेक्ट नूं असीं देख सकते हैं, ठीक है। बट अगर ऑब्जेक्ट इन्ना ज़्यादा छोटा होवे कि उसनूं नेकड आई नाल देखा नहीं जा सकता, तो विजिबल लाइट जदों उस ऑब्जेक्ट के उपर फॉल करेगी तो रिफ्लैक्ट नहीं हो पाएगी, वो उसके उपरों जंप कर जाएगी। दैट्स वाई असी वो छोटे जिहड़े ऑब्जेक्ट होंदे ने उन्हां नूं नेकड आई दे नाल नहीं देख सकते। जिवें कि साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल कितना हुंदा है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर। इन्ने स्मॉल ऑब्जेक्ट नूं नेकड आई दे नाल देखना पॉसिबल नहीं है। सो उस दे लई असी की यूज़ करते हैं, असी इनडायरैक्ट मैथड नूं यूज़ करते हैं। कैरम बोर्ड सारिਆਂ ने खेलिया, ठीक है ना, तो की हुंदा है जदों तुसीं स्ट्राइकर नूं मारदे हो, ठीक है, अपने हत्थ दे नाल इदां स्ट्राइक किया, किसी अगर जो खेल रहा कैरम के वॉल्स के उपर अगर वो स्ट्राइकर स्ट्राइक करता है तो जिहड़ी बाउंड्री है, बाउंड्री की हाइट ज़्यादा होंदी है एज़ कंपेयर टू स्ट्राइकर, तो वह रिफ्लैक्ट होकर वापस आ जाता है। बट कदे तुसी ये देखे जो तुसी पाउडर उहदे उपर स्प्रिंकल करते हो, कदे स्ट्राइकर उस पाउडर दे नाल वापस आया होवे? नहीं आता। क्यों? क्योंकि जिहड़े पाउडर के पार्टिकल्स ने
ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨੇਕਡ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੈਨ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ -6 ਤੋਂ -7 ਮੀਟਰ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਹੁਣ ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਸ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਐਕਸ-ਰੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 10⁻⁻⁹ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਸੌਰੀ, ਐਕਸ-ਰੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10⁻⁸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਫ 10⁻⁹ ਮੀਟਰ। ਇਸ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। That means कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ electron microscope, this is more efficient as compared to X-ray microscope, and X-ray microscope is more efficient as compared to optical microscope. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਰੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ऑलिक एसिड मैथड दी मैं एग्जांपल लेके थोनों एक फॉर्मूला ड्राइव करवाऊँगी तो उतों असी कैलकुलेशन करांगे कि अगर बहुत स्मॉल डिस्टेंसिस नू मैजर करना होए तो वो कैलकुलेशन मैथड नाल असी किस तरह कर सकते हैं। अज दे लैक्चर दे लई इन्ना ही, मिलते हैं अगले लैक्चर च। थैंक यू।